नेल्सन अस्पताल ने नगर निगम नागपुर के सहयोग से क्लोरियर इम्प्लांट सर्जरी करवाने वाले 2 बच्चों के लिए स्विच ऑन कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम 28 जनवरी को अस्पताल में किया गया, जिसमें बच्चों के लिए क्लोरियर इम्प्लांट को सक्रिय किया जाएगा, जिससे वे पहली बार आवाज सुन सकेंगे। नेल्सन अस्पताल ने नागपुर नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन MOU साइन किया था और इस पहल के तहत पहले 2 बच्चों की सर्जरी की गई थी। अब इन बच्चों के लिए स्विच ऑन प्रक्रिया एक नई शुरुआत होगी, जो उनके जीवन में खुशी और उम्मीद का नया रास्ता खोलेगी। Myself Dr. Prashant Naik. I'm an ENT surgeon from Nagpur, and we put, as you asked, when do we put the cochlear implant? That is a very good question, because each deaf child will not be fitted with the cochlear implant. There is a certain level of hearing loss. If the hearing loss is very mild, very or moderate, or maybe mixed moderate and severe, then we can very well give the child a hearing aid that will give all the perception of sound and speech so that the child can learn speaking. But when the hearing loss becomes severe or beyond that, in all the developed countries, the child undergoes hearing test on the second day of birth. Here we neglect the child. Our parents believe that child may talk after a few years. Their grandparents also tell the parents that नहीं कुछ नहीं होगा, बच्चा सीखेगा. You were such a kid, and that time also you also started speaking late. So here we delay the proper testing for hearing, and that makes it very difficult to get the children detected very early in the process. So, but when should the child be subjected to hearing test? On the second day of birth. Many deaf adults can be benefited with this. In our country, we are not doing it properly. The program is not running properly. In many countries, developed countries, almost children with cochlear implant and adults with cochlear implant, the percentage is 50%. 50% adults are getting implanted in the cochlea, and they are getting benefited. Basic problem is if the child has learned speaking and then loses hearing, already he has the speech center in the brain, that child is easier to rehabilitate, okay? But the child which is congenitally deaf, has not heard a single word, that's very difficult and lengthy process of rehabilitation. That's why in adult cases where the adults have learned the speech and then lost the hearing, lost the nerves, and then they are very easy to be implanted and easy to be rehabilitated in the process. That was a very nice question. Yes, adults should be implanted. ये जो प्रोजेक्ट आज हम कर रहे हैं, जैसे आज 2 बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांटेशन सर्जरी हमने कराया, जो कि NMC नागपुर महानगर पालिका के तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई गई है। जो बच्चों को सुनाई नहीं आता है, वो बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांटेशन सर्जरी लगती है, और अगर वो फाइनेंशियली उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम ये सर्जरी कराने जाते हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख या उससे भी कई गुना ऊपर पैसे इस सर्जरी के लिए लगते हैं। अगर ज़रूरतमंद है बच्चा और पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली NMC में नागपुर महानगर पालिका में वो इसे रजिस्टर करा सकते हैं, और रजिस्टर करा के उनका ये सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट नेल्सन हॉस्पिटल में करवाया जा सकता है। मैं डॉक्टर जीवन बेदी, मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ ENT में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और अपना ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेयो हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, वो पूरे 22 मेडिकल कॉलेज में पहला मेडिकल कॉलेज है जिसने कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम शुरू किया। और अभी तक के मैंने 108 कॉक्लियर इम्प्लांट किए, जिसके अंदर में मेरे 3 इम्प्लांट शालिनी ताई मेघे में मैंने मेंटोर किया, और 2 इम्प्लांट मैंने लता मंगेशकर में किया है। तो ऐसे 108 इम्प्लांट हुए, आज ही एक मैंने किया है। जैसा आपने पूछा कि पेरेंट्स का क्या रहता है, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि वो बच्चे की जो माँ होती है वही उसकी डॉक्टर होती है, क्योंकि उसी को पता चलता है कि अपना बच्चा सुनता नहीं है। और जब वो सुनता नहीं है तब वो देखती है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ देख नहीं रहा है और आवाज़ से डर नहीं रहा है, फटाकों का आवाज़ है उससे डर नहीं रहा, तो ऐसे वो लोग हमारे पास आते हैं। तो मैंने अभी जैसे कलेक्टर साहब है और NMC के जो अंचल गोयल मैडम है, इनसे भी क्या है कि अपन ने यूनिवर्सल स्क्रीनिंग अपन ने करना चाहिए, यानी जन्म होते से ही बच्चा डेफ होगा कि नहीं होगा ये पता चल जाएगा। और एक छोटी सी टेस्ट होती है जिसे OAE कहते हैं, ऑटो अकास्टिक इमिशन, वो करने के बाद में ही अपने को पता चलता। अगर उसमें रेफर आ गया तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसका बेरा करना पड़ेगा, ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, जो अपनी मेयो में अवेलेबल है।
और अगर उसमें पास आ गया तो हमको टेंशन नहीं रहता है। और जितना जल्दी, जैसा अभी RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अभी MJPJY महात्मा ज्योतिबा फुले और आयुष्मान भारत, इसमें 2 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र वाले, उनका कॉकलियर इम्प्लांट होता है। ऐसा है कि जितना जल्दी उसका इम्प्लांट होगा तो बच्चा जैसा सुनने लगता है तो उतना अच्छे रिजल्ट उसके अंदर आएगी। और जितना लेट होता है उसमें तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और दूसरी अभी नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कीम है जिसके लिए नेल्सन ने 2 किए, हमारे तरफ 2 हुए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 हुए। तो नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने भी नागपुर के जो रहिवासी है उनके लिए 6 लाख रुपए का अनुदान देने का घोषणा की। और उसके अंतर्गत हमारी जो कमेटी है कॉकलियर इम्प्लांट की, उसके तहत हम सभी को स्क्रीनिंग करते हैं और उसके अंदर में उनको वो कॉकलियर इम्प्लांट करने की परमिशन दी जाती है। मैं डॉक्टर दीपक सेलोकर हूँ। मैं NMC हेल्थ डिपार्टमेंट में चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। जो कॉकलियर इम्प्लांट का जो प्रपोजल हमारे पास में आया था, तो ऐसा पता चला कि कुछ बच्चे इसमें छूट जाते हैं क्योंकि उनका फंडिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा था। और हमारा एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर आंचल गोयल मैम है, इन्होंने 2 या 3 कंटिन्यूस मीटिंग दिया। फिर जो फंड NMC के लेवल पे उपलब्ध था वो समाज कल्याण विभाग का था। फिर उसके हिसाब से एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई और उसमें ठहराया गया कि जो NMC एरिया में जो बच्चे हैं जो जन्मतः सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चे को हम कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो 0 to 2 इयर्स के जो बच्चे हैं वो तो अपने RBS के या MPJY जो कुछ स्कीम है उसमें कवर हो रहे थे, लेकिन 2 से 5 साल के बच्चे हैं जो सुन नहीं पा रहे और उनको कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी की आवश्यकता है, तो वो बच्चे हमने ये किए कि इनको हमने सपोर्ट करना है। फिर ये सपोर्ट में हमने 2 चीज़ें देखी कि इसको कितना कॉस्ट दिया जाए। तो महानगर पालिका ने यानी कमिश्नर सर ने, ऑनरेबल कमिश्नर सर ने ठहराया कि एटलीस्ट 6 लाख जो निधि जो है हम महानगर पालिका के फंड से देंगे। एंड फिर ये कौन से हॉस्पिटल चुने जाएंगे, तो जैसे हमने 5 या 6 हॉस्पिटल, कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल चुने, जैसे GMC IGMC हो गया और लता मंगेशकर है, नेल्सन हॉस्पिटल है, अपना शालिनी ताई में गया और 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल हमने चुने। और इसके हिसाब से जो प्रोसेस होगा, तो जो भी बच्चे जो सुन नहीं पाते, जन्मतः सुन नहीं देते, वो बच्चे के प्रपोजल्स ये हॉस्पिटल थ्रू हमारे पास में आएंगे और NMC इसको फंडिंग देगा। इस हिसाब से पूरी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो नागरिकों से मेरी यही आह्वान है कि इस प्रकार के बच्चे अगर कहीं आपको दिखाई देते या कुछ भी न्यूज़ इसके बारे में होगी, तो हमको NMC हेल्थ डिपार्टमेंट को आप बताइए। हम उसका ऑपरेशन जो है 6 लाख तक का अनुदान हम हमारी तरफ से उनको प्रोवाइड करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा पंजवानी की रिपोर्ट।